Good day to all present here. As we discussed in the previous video about directive principles of state policy and its relation with the fundamental rights, moving ahead with the next topic, that is fundamental duties. These fundamental duties are moral obligations which are given after the part 4 of DPSP, that is, it is enshrined under part 4A of the Constitution. So in today's video, we'll discuss about that what is actually fundamental duties and what does the provisions of part 4A have. So basically, if you see by words meaning of duties, duties means there are certain obligations which are put on us, that is on the citizens of India, with respect to the rights is given. Like, see, if there are rights present, there are certain duties also. That is, we can say that it is proportional to duties. Some rights we also get, and for that, in against those rights, we are having certain duties also. So what does the Constitution, what are the duties which the Constitution put on us, we had to discuss further in this video. So starting with the same, basically this fundamental duties, I already told that the part 4th A consists of fundamental duties. Part 4A, therefore if part 4 is there of DPSP, after part 4 there was one more part included because it is having the digit A, therefore it has been added by an amendment, and that amendment was 42nd Amendment 1976. This part 4A, and part 4A consists of a single article, that is 51A. This 51A in 4A was added by 42nd Amendment 1970. So point to be remembered that 51A is under part 4A. There is a single article present, and unlike fundamental rights part 3 which are enforceable, fundamental duties are non-justiciable. See, these are the outlines that what would be the responsibility as a citizen towards the nation, towards the society, or towards the environment. So we say that it's the significant amendment because for India's legal framework, it was the need that we had to provide certain constitutional trends to the citizens also, which are basically towards the providing of certain responsibility to the citizens also, because constitution is guaranteeing certain rights. So therefore there is a need for citizens also, that what kind of duties or what kind of obligations citizens could carry forward. So this fundamental duties concept has been taken from USSR, that is from Soviet Union Constitution. We had taken this idea of fundamental duties. We have borrowed this feature from USSR Constitution. So now if I say that these are non-justiciable, this means that the court cannot directly enforce them because they are not any kind of rights. It is just the civil responsibilities among the citizens, and those civil responsibilities, it is presumed that citizens will carry forward these duties. They just are the guidelines for the citizens behavior कि कैसा citizens को होना चाहिए, citizens की भी क्या duties हैं in that respect, and they guide citizens behavior and inspire legislative and executive policies also based on these duties. So now next point is balancing rights and duties. That means inclusion of fundamental duties was strategic move to provide a counterweight to fundamental rights. I said that there are rights present, so directly proportional to duties. Duties will also be present, fostering a sense of civic responsibility among the citizens. Certain kind of obligation on the citizens has been made. It also highlights that rights come with inherent obligations. I told you, like if I have certain rights, therefore it's not absolute that I will only have rights only. There are certain duties also. There is certain obligation also that I have also had to fulfill. See, if I say कि अगर मेरे पास कुछ rights हैं या मेरे पास कुछ मुझे कुछ ऐसे चीजें मिल रही हैं जो that I can guarantee, I can take it by guarantee, तो अब मेरी भी तो कुछ
कुछ ड्यूटी बनती है, मेरी भी तो कुछ ऑब्लिगेशन बनती है, एंड दोज ऑब्लिगेशंस आर कवर्ड अंडर 51A। जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया था, दैट मीन्स जब वो ओरिजिनली इनैक्ट हुआ था, देयर वाज नथिंग लाइक ड्यूटीज प्रेजेंट इन दैट। सबसे पहली बार 42nd अमेंडमेंट 1976 जब आया, उसने सबसे फर्स्ट टाइम एक पार्ट ए ऐड किया, पार्ट 4A ऐड किया, जिसमें 51A आर्टिकल ऐड हुआ, ओनली सिंगल आर्टिकल, एंड दैट कंसिस्टेड ऑफ ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि सिटीजन्स का भी कुछ ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और वो ऑब्लिगेशन क्या है, दैट वर मेंशन्ड इन दीज पार्ट। Next, what part 3 says that there are 11 core duties, but जब constitution आया था, so there were no 11 duties, there were only 10 duties, and after 86th Amendment Act 2002 में एक amendment act आया, 86th Amendment Act, and that added 11th duty, and 11th duty was making education fundamental responsibility. One by one in my forward slides I will tell you that what kind of duties we have. So 11th duty was regarding the education responsibility, and these duties, all these duties encompass various aspects of nation life and citizens conduct. I told you that they guide the citizens behavior, तो citizen का कैसा behavior होना चाहिए, उसका कैसा conduct होना चाहिए in the nation, कुछ तो duties बनती है हमारी भी in respect of nation, in respect of society. So all these are mentioned under this 11 duties. These are non-justiciable, therefore they are morally binding. Non-justiciable क्योंकि we cannot go to the court and courts cannot directly enforce them. These are just the moral or ethical weight. By weight you mean, by weight the meaning is that just the guiding behavior of all the citizens, that what should be your conduct, what should be your behavior in the society. अब क्योंकि you are getting certain rights also, so it is important that certain duties are also imposed on you. So for that, nation has given us this part 4A for imposing certain duties on us as a citizens of India. Next is basically, let's revise something about fundamental rights. Part 3 of the Constitution, already told you that it's from 12 to 35, and if it's 12 to 35, our rights start from 14 and ends at 32. So these certain rights which are article 12 and 13, and from 33 to 35, these are added in the fundamental rights part 3 because they are important with the aspect of fundamental rights. Like if I give you example of article 12, it has a definition of what is state. So if the state is to give the fundamental rights or provide fundamental rights and guarantee fundamental rights if set by the constitution, we should all know that who are the authorities that come under the ambit of state. तो state के अंदर कौन आ रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए article 12 का position we have put it on the fundamental rights. 13 says that कोई भी ऐसा law which is inconsistent with all of these provisions or constitutional provisions वो void हो जाएगा. Now आर्टिकल 13 इसलिए ऐड किया गया था कि सबसे पहले तो लॉ कौन कौन सी चीजें लॉ होंगी, टू डिफाइन दैट व्हाट आर लॉज, और जो भी लॉज आ रहे हैं दे आर ऑलवेज to be checked against the constitution, whether they are parallel to the constitution or they are against to the constitution. So if I talk about, because we have already discussed in detail about this fundamental rights, but let's just see in a glimpse that these are justiciable in nature. Like if the violation of any of these rights given under 14 to 32 or 12 to 35, if any of it is violated, then we can directly go to the Supreme Court or High Court. For Supreme Court, we can go to under article 32, which is itself a fundamental right, and for High Court we can go under article 226, which is a constitutional right. So these both rights have been provided to us कि हम directly court जा सकते हैं, अपना case file कर सकते हैं, और वो जो case हम file करेंगे वो court accept करेगा, because this is the violation. right है तो right का violation है, और violation है तो remedies भी provide होंगी. वो जो remedies हैं are provided by the courts. अब कुछ ऐसी सिविल रेमेडीज, कुछ ऐसे राइट्स जो कि हमें दिए गए हैं, दोज आर जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इंपॉर्टेंट राइट्स आई एम मेंशनिंग हियर, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो ये जो सारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, दी सर्व एज अ वाइटल चेक अगेंस्ट द पोटेंशियल स्टेट ओवररीच, की ऐसा कोई आर्बिट्ररी एक्शन ना हो स्टेट की वजह से जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो जाए. और इनका सोल पर्पस क्या है इनको देने का? इट
ensures or the state ensures a dignified life of all the citizens. Landmark case was Keshavananda Bharti case, Keshavananda Bharti versus State of Kerala. This case basically told us that what is basic structure doctrine. यहाँ पे ये बताया गया कि हम amend सब कुछ कर सकते हैं in the constitution, but the core features, the basic structure of the constitution couldn't be amended, and it includes fundamental rights also. See, when the constitution originally came, initially when it came there were 7 fundamental rights, but after the amendment it came 6. Now we are following only 6 fundamental rights, so one was removed, that is right to property. So there is a certain reason, there is a reasonable decision that why article 31 has been removed, has been repealed of right to property. But also in respect of when we are removing it from fundamental rights, we gave it as a status of the constitutional right under article 300A. So this removal doesn't disturb the basic structure. So now if a legislature wants कि हम article 21 को हटा देते हैं, या okay let's remove article 21A, so that cannot be removed because it's the very basic structure, very fundamental core structure of our constitution. If that is removed, therefore it's an arbitrary action of the legislature which is actually not allowed. So कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे देता है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ही उस पावर को लिमिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि जो हमारे ब्रांचेस हैं दे कैन नॉट गो अल्ट्रा वायर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज एंड डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर और द बेसिक नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. सो moving forward, DPSP, because we are studying in the relation of fundamental duties with both of these, that is fundamental rights and DPSPs. So let's just revise that what are DPSPs. DPSPs under part 4, and part 4 it is from 36 to 51, where we say that these are the guidelines. Guidelines का मतलब क्या हुआ? These are the directions given to the state, और ये जो directions हैं these are given by the constitution, और ये state के लिए है. स्टेट के लिए क्यों है? क्योंकि सी पहले क्या था, इट वाज अ नॉर्मल स्टेट, और वी कैन से दैट पुलिस स्टेट. पुलिस स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बस हम लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन कर रहे हैं. वी आर नॉट हैविंग एनी अदर थिंग. इफ वी एक्सपेक्ट कि पुलिस स्टेट के अलावा क्या होता है, पुलिस स्टेट से अगर हम इसको कन्वर्ट करना है टू सोशल वेलफेयर स्टेट. सोशल वेलफेयर स्टेट मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो फोकस है दैट इज ओनली ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है. अगर इस पुलिस स्टेट को सोशल वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट करना है, सो देयर इज द नीड कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारा स्टेट है, दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड, उसका जो इंटरवेंशन है दैट हैज़ टू बी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट which can be think of. That means कि जो पुलिस स्टेट होता था इसमें गवर्नमेंट was not involved in the economic or not involved in any kind of individual's life or any kind of aspect of social life. So वहाँ पे क्या था कि पुलिस स्टेट का मतलब हुआ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, that's only the task of government, that's it. अब इकोनॉमी, मार्केट, इन सब चीज़ों में क्या चल रहा है गवर्नमेंट का, there was minimal role. बट इसकी वजह से हो क्या रहा था, there was मोनोपली. वहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे थे, एंड इंडिविजुअल्स हैव नो अदर ऑप्शन टू गो and take the remedy. वो जाए किसके पास? So to convert from police state to social welfare state, this actually the part of police state to laissez-faire state and to social welfare state. This comes from the administrative law, specifically administrative, because we see that how the evolution of administrative law has been made. So this was the history or the evolution of administrative law. And why I am telling you here is because we are talking about the welfare. तो welfare basically आया कहाँ से? Welfare came from that idea only कि हम पुलिस स्टेट को जब कन्वर्ट करते हैं, मॉडर्नाइज होते हैं और सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, और सोशल वेलफेयर के बाद जब हम मॉडर्न स्टेट की साइड बढ़ते हैं, तो वी नीड, हमारा जो फोकस होता है दैट इज सोशल वेलफेयर. और सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि एज अ सोसाइटी वी हैव टू प्रोवाइड द जस्टिस. अब जस्टिस प्रोवाइड करना है तो सबसे
सबसे पहले तो देयर मस्ट बी द सोशल इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, हमें इक्वली ट्रीट करना है। तो ये जो सोसाइटी को हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं या सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ये इंश्योर करना काम होता था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट वी कैन से दैट स्टेट। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मान लो हम किसी भी गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट इंक्लूड्स द वर्ड दैट इज स्टेट, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट को बोलते हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और वेलफेयर ऑफ द नेशन, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक पार्ट दिया गया है दैट इज पार्ट 4A। और वो पार्ट 4A हमसे क्या कहता है दैट दीज आर द डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट कि वो सोशल वेलफेयर और जस्टिस को प्रमोट करेगा। एंड फॉर प्रमोशन, व्हाई द प्रमोशन इज बीइंग आस्क्ड इज टू एंश्योर द जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, जिससे कि हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर पाए। इनका एम ही यही होता है दैट इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि सी एज अ सोसाइटी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में, और हम अगर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, सो उस डिस्क्रिमिनेशन का जो गैप है, इफ यू वांट टू रिड्यूस दैट गैप, इफ यू वांट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, सो दिस रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। और ये इन रिडक्शन ऑफ जो हम इनइक्वालिटीज करें वो कैसे करेगा, बाय इंश्योरिंग अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टेट या कोई भी रिसोर्सेज दे रहा है तो वो इक्वली देगा, एंड इफ देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज गिवन तो वो भी इक्वल ही देगा, दैट एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सोसाइटी एज अ होल इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ये जो सारे डायरेक्शंस हैं, ये स्टेट को दिए गए हैं कि जब भी आप फर्दर कोई लॉ बनाओगे, लेजिस्लेचर है तो जब कोई फर्दर वो लॉ बनाएगा तो वो लॉ कंसिस्टेंट होना चाहिए इस पार्ट से, इसके किसी भी प्रोविजन से वो अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एक्शन है जो एक्शन एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ा रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, तो वो जो एक्शन है दैट डजंट गोज अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड स्पेसिफिकली द स्टेट फॉलोज दीज डायरेक्शंस व्हाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। सो जब ये चेक लगेगा कि क्या ये डीपीएसपी के अगेंस्ट गया है या स्टेट इज फॉलोइंग डीपीएसपी और नॉट, तो हमेशा उसके एक्शंस प्लस उसने जो लॉ बनाया है दोनों चीजें चेक होंगी। Next comes is resource equity. Resource equity means example यहाँ पे दिया है that directs the state to secure equitable distribution of material resources and prevent concentration of wealth. See, आर्टिकल 39 ये कहता है लाइक इफ वी आर हैविंग मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू, मिक्स्ड इकोनॉमी में वी हैव पब्लिक प्लस वी हैव प्राइवेट सेक्टर्स। अगर हम सिर्फ ये कर दे कि ओनली वी कैन गो फॉर पब्लिक सेक्टर्स, तो यहाँ पे हमने जो इकोनॉमी है वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर दी स्टेट की। अगर मोनोपोली इज क्रिएटेड देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज ओनली ऑन वन पॉइंट, हम बाकी लोगों को या प्राइवेट सेक्टर्स को हम मौका ही नहीं दे रहे हैं। देन अगर हम मौका नहीं देंगे तो देयरफॉर we are not distributing the resources properly, we are not giving the opportunities properly, और ये स्टेट का काम होता है इस इक्वालिटी को मेंटेन करना। प्राइवेट जब हम इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हैं, वी आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिंग इनटू द मार्केट, और जो भी इनइक्वालिटीज है वेल्थ की या जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की उसको हम देते हैं। प्लस इसमें एक और आता है लाइक इफ द पर्सन इज इधर मेल और फीमेल, सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर वही काम कोई फीमेल कर रही है और वही काम अगर कोई मेल कर रहा है तो इक्वल पे विल बी गिवन, यानी नो एनी पॉसिबल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज टू बी गिवन बाय द और expressed by the state, so state को ही discrimination यहाँ पे नहीं करना है। so these are the directions। अब क्योंकि ये directions होते हैं तो ये भी basically non enforceable और non justiciable होते हैं। non enforceable and non justiciable क्योंकि अगर इनका violation होता है तो individual court में नहीं जा सकता, court cannot directly take the केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ डीपीएसपी। अगर इनका वायलेशन है तो सीधे सीधे अगर एग्जीक्यूटिव का एक्शन हुआ है तो वो इनवैलिड होगा, और अगर लेजिस्लेचर का है तो वो पर्टिकुलर लॉ इनवैलिड हो जाएगा। नो पर्टिकुलर केसेस हैज टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Next comes is what is the relation between fundamental rights, DPSPs and duties. So तीनों के जो parts हैं वो simultaneously हैं, part 3 of fundamental rights, part 4 of DPSP और fundamental duties का part 4A।
तीनों के भी अंडरस्टूड दैट कि तीनों का जो अलाइनमेंट है वो इसीलिए किया गया था कि सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर दिए जो हमें सर्टेन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट राइट्स दे रहा है जो हमारी लिबर्टीज और प्रोटेक्शंस की काम कर रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट हमें यहाँ पे कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड हो रही हैं और उन्हीं फ्रीडम्स को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी प्रोवाइड किया गया है। डीपीएसपी इज बेसिकली द गाइडलाइंस और द डायरेक्शंस किसको दे रहा है, स्टेट को, कि तुम्हें अगर ये पार्ट 3 प्रोवाइड करना है, पार्ट 3 का इन्फ्रिंजमेंट ना हो तो इन गाइडलाइंस को द स्टेट हैज टू फॉलो। और अब अगर बात आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, सो दीज आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल्स की यू हैव ऑल्सो टू टेक केयर कि आगे फर्दर आपका कंडक्ट कैसा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ योर नेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सोसाइटी। सो ये कुछ सिविक ड्यूटीज हैं जो सिटीजन्स के ऊपर एज अ मॉरल एप्लीकेशन लगाई हुई है। देयरफॉर अगर ड्यूटीज नहीं भी फुलफिल होती हैं दैट डजंट मीन कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ में केस लेके पहुंच जाएगा, बट ऐसा माना जाता है कि morally these duties or ethically these duties has to be followed by each of our citizens. Next is if I talk about key important केस लॉस जो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल के इंटरैक्शन को लेके अगर आता है, सो फर्स्ट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये जो केस है दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट एंड इस लैंडमार्क जजमेंट में ये बताया गया दैट देयर इज अ हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी डिक्लेयरिंग दैट बैलेंस बिटवीन देम इज अ बेसिक फीचर। सी इम्पॉर्टेंट क्यों है इनका एक दूसरे के साथ, इम्पॉर्टेंट क्यों है इनका एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना, क्योंकि इफ दे आर नॉट इन हार्मनी तो फिर हम एक बैलेंस नहीं रख पाएंगे कि हमने राइट्स कुछ दिए और हमने डायरेक्शन स्टेट को दिया। स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को ही गारंटी करना है कि ये जो राइट्स हैं ये लोगों तक पहुंचे और इनका वायलेशन ना हो। तो वो जो एक्शंस हैं स्टेट के दैट आर गाइडेड बाय दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होता है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी से दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों का इंपॉर्टेंट होना इसलिए जरूरी है बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट नहीं है तो एब्सोल्यूट जो लॉ एक प्रॉपर लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड ऑफ कोर्स, तो वो एक प्रॉपर लॉ नहीं होगा बिकॉज डायरेक्शंस क्लियर नहीं होंगे, राइट्स क्लियर नहीं होंगे। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का रोल यहाँ पे क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्प्लिसिटली सपोर्ट दिस बैलेंस बाय एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। देखो अगर हम अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देते हैं जो कि सिटीजन्स हमारे इंजॉय करते हैं उन राइट्स में, सो एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन भी लग जाता है इन फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म करने का। अब ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज अभी जब हम आगे के अब स्लाइड्स में देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, देन वील अंडरस्टैंड कि हमने ये ड्यूटीज सिर्फ इसलिए बनाई है जिससे कि जो हमारी जो सिटीजनशिप राइट्स जो हम इंजॉय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमारे पास कुछ छोटी छोटी ड्यूटीज हो जो कि सिर्फ हमारा एक ऑब्लिगेशन क्लियर करता है कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन हमारी क्या ड्यूटी बनती है, क्या ऑब्लिगेशन बनता है अगेंस्ट द नेशन। और वो जो पॉइंटर्स हैं 11 पॉइंटर्स, वो एज अ सिटीजन हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने नेशन को क्या दे सकते हैं। दो ज़्यादा ड्यूटीज विच वी कैन परफॉर्म। नेक्स्ट इज रंगनाथ मिश्रा कमीशन केस ऑफ 2000। इसमें एक कमीशन बना जिसने मेजर्स बताए कि दैट हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुड बी प्रमोटेड बाय मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज मोर इफेक्टिव। और ये जो मोर इफेक्टिव का जो मतलब बेसिकली ये जो केस आया था इसने हाईलाइट किया था कि ड्यूटीज इतनी इसेंशियल क्यों है, और ड्यूटीज आर इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी। देखो राइट्स अगर दे दिए ठीक है, अच्छी बात है, वो राइट्स देना कह सकते हैं कि स्टेट का एक काम है, उसको प्रोवाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जब सिटीजनशिप दे रहे हैं तो सिटीजनशिप के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो सिटीजन इंजॉय करते हैं। बट इन दिस केस इसमें कमीशन ने स्पेसिफिकली कुछ ऐसे मेजर्स बताए जहाँ पे इम्पॉर्टेंट था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके आना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें एक इन्फॉर्म्ड का मतलब कि अगर कुछ ड्यूटीज़ हैं तो वो एग्जॉस्टिव लिस्ट क्या है ड्यूटीज़ की, एग्जॉस्टिव लिस्ट अगर होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास if we are having certain exhaustive list
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल कुछ पॉइंटर्स कहता है एंड दोज पॉइंटर्स आर द लिस्ट ऑफ कि हमें आगे एज अ सिटीजन हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे क्या ऑब्लिगेशंस बनते हैं, जो कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ सिविक सिटीजन हमारा काम है इफ यू आर लिविंग इन दिस सोसाइटी। अगर इंडियन सोसाइटी में है, इंडियन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो हैविंग सर्टन पॉइंटर्स टू फॉलो अप, और वो जो पॉइंटर्स हैं आर बेसिकली द ड्यूटीज। इन्फॉर्म्ड का मतलब इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक आर्टिकल है, तो आर्टिकल कोडिफाइड है लॉ में, तो वो आर्टिकल स्पेसिफिकली बता रहा है कि ड्यूटीज क्या है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी, बिकॉज अगर as a citizen I am having certain rights, so there is certain moral obligation on me as a duties. नेक्स्ट आता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस है। इट सेड दैट कि अगर इट्स द मैटर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड पब्लिक कंडक्ट, तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज अलोंगसाइड फंडामेंटल राइट्स चलेंगी। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ ड्यूटीज कैन बी कंसिडर्ड इन अपहोल्डिंग नेशनल वैल्यूज विदाउट डिमिनिशिंग फ्री इंडिविजुअल फ्रीडम्स। देखो, अगर हमने राइट्स प्रोवाइड किए हैं, तो अगर राइट्स का वायलेशन है तो इंडिविजुअल का डायरेक्ट राइट है और वो उस वायलेशन के लिए कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और कोर्ट में दैट राइट्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, और जो भी अगर वायलेशन हुआ होता है तो अगेंस्ट द स्टेट रिट्स इशू होती है कि व्हाई दीज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और इनका प्रोटेक्शन स्टेट ने क्यों नहीं किया। सो रिट्स आर बीइंग इशूड बाय द कोर्ट। नाउ द थिंग कम्स इज फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक कंडक्ट की मतलब सिटीजन्स का कंडक्ट कैसा है, या अगर हम बात करें कि नेशंस के लिए जो सिटीजन्स हैं उनका क्या एक ड्यूटी बनती है या उनकी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो बेसिकली उसको बताया किसने है हमें कि हमारी जो नेशनल वैल्यूज़ है वो क्या है, और उस नेशनल वैल्यूज़ के लिए एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं। दोज आर पर्टिकुलरली द ड्यूटीज विच आर मेंशन्ड अंडर 51A। अब हमने ड्यूटीज में ऐसा कुछ नहीं किया है कि दे आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, या हम उनको ब्रश ऑफ कर रहे हैं या फिर हम उनको वॉश ऑफ कर दे रहे हैं बाय द यूजिंग दीज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगेंस्ट जाता है फंडामेंटल राइट्स के। राइट्स हो गए हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम्स और ड्यूटीज हो गई हमारे कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस जो कि इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज जस्टिसिएबिलिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी के कुछ केस लॉज। फर्स्ट इज के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने अफर्म किया था दैट दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बट दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, क्योंकि दिस डजंट रेंडर देम एज टूथलेस। द थिंग इज कि इसका ये कहना था, इस केस में कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि ये डायरेक्टली कोई राइट नहीं है, ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है, और मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करने पे हम किसी को जेल नहीं भेजते। देखो मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। जैसे मान लो कोई बेगर है, वो बेगर आपसे भीख मांग रहा है, अब आप उसके बगल से निकले, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मतलब मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ अमाउंट दे दो, आई नीड इट। अब मान लो आपका, इफ दिस इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन कि आपका मन है आपने उसे 10-20 रुपए दे दिए, बट अगर आपको लगता है कि नहीं ही इज ओके, ही कैन गो वर्क समवेयर, सब कुछ तो ठीक दिख रहा है इसमें, एज भी इसकी ठीक है कि कोई काम करके क्यों नहीं कमा रहा, ये क्यों भीख मांग रहा है, आपने नहीं दिया, आपकी मर्जी, तो आपने 10-20 रुपए भी नहीं दिए, ऑल्दो यू कैन गिव बट आपने नहीं दिए। सो यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हाँ मन किया तो 10-20 रुपीज दे दिए, कुछ नहीं जा रहा है, बट दूसरी जगह ये भी है कि मेरी मर्जी अगर हम दें या ना दें, तो यहाँ पे क्या अगर हमने उसको पैसे नहीं दिए तो क्या हमें जेल हो जाएगी, या फिर हम उस पर्सन का कोई राइट वायलेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब ये हमारी ड्यूटी है, कैसी ड्यूटी है, वो भी मॉरल ड्यूटी है। इस तरह की ड्यूटी नहीं है कि स्पेसिफिकली हमें परफॉर्म करनी ही करनी है, दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ कि मॉरल ऑब्लिगेशन है कि ठीक है चलो हेल्प कर दिया, इट्स ओके, बट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन कि चलो हमने अगर उसको नहीं भी दिया जो वो बेग कर रहा था या जो भीख मांग रहा था, तो दिस इज नॉट कंपल्सरी ऑन अस कि हमें उसे देना ही है, दिस इज द मॉरल ऑब्लिगेशन वेदर वी गिव हिम और नॉट। वैसे ही वी कीप ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये ड्यूटीज ऐसी हैं जो हमें परफॉर्म करनी है, बट समहाउ
अगर मान लो ड्यूटीज़ में कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं परफॉर्म कर पाते हैं या वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्फ्रिंज हो जाती हैं, तो कोर्ट इनको डायरेक्टली एनफोर्स नहीं करता है, बिकॉज ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है। हम किसी को जेल नहीं भेज देंगे कि आपने ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की। नाउ इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑर्डर Act 1971 is a legislative enactment that gives teeth to the fundamental duty of respecting the national flag and anthem. अच्छा, अब यहाँ पे बिकॉज पहले वो क्या बताया था, टूथलेस है, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स इसी ड्यूटीज के ही प्रोविजन से फर्दर उन एक्ट्स को बनाया गया जो कि एज अ एक्ट काम करते हैं। नाउ अगर वो एक्ट बन गया है तो देयरफॉर it has given teeth to this fundamental duty. अभी fundamental duty में ही एक ड्यूटी है that we have to respect the national flag and national anthem. अगर इस चीज को अब कोई इन्फ्रिंज करता है तो by act अब वो enforceable है। वैसे ही अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अहमियत बोला जाता है, इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अ नेचुरल एनवायरमेंट, बट अगर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज में अगर किसी लॉज का ब्रेक कर देते हैं, वहां पे वो इनडायरेक्टली एनफोर्समेंट हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज का, बिकॉज वी हैड डन समथिंग जिसने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है। हमारी ड्यूटी थी उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको इम्प्रूव करने की, और हमने उल्टा क्या किया, उसको पल्यूट कर दिया। सो अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज वी विल बी लायबल। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन की डायरेक्ट कोई इन्फोर्समेंट, डायरेक्ट कोई जस्टिसिएबिलिटी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज की, बिकॉज वो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। बट इफ वी कम अंडर द स्पेसिफिक एक्ट्स जो मॉरल ड्यूटीज से निकल के आए हैं, उन एक्ट्स पे अगर हम फोकस करें तो वहां का अगर जो प्रिवेंशन है दैट कैन गो टू द कोर्ट एंड दैट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज अ स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्ट हैज बीन मेड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। अब नाउ वी कम ऑन कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव। सो फॉर द आई जस्ट नेम वन बाय वन। फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट its ideals, institutions, national flag and national anthem. So respect regarding all the national symbols, first duty. Second is to cherish the noble ideas and follow the noble ideas that inspired our national struggle for freedom. जितने भी हमारा नेशनल स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम को लेके फॉर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल हो रहा था, तो उस टाइम पे जितने भी नोबल आइडियाज़ थी या जो भी हमारी हिस्ट्री थी, वी शुड चेरिश इट, वी शुड फॉलो दोज नोबल आइडियाज़ जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल के टाइम हुए थे। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये पर्टिकुलर पॉइंट तो हमारे प्रियम्बल में ही मेंशन्ड है। सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और इससे होगा क्या, बेसिकली डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ही मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, transcending religious, linguistic, regional or sexual diversities and renounce practices derogatory to women. That means कि हमें स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मतलब एक टर्म दिया है हमारे प्रियम्बल में ही, दैट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ सर्टेन नेशन। और वो फ्रेटर्निटी वर्ड जो क्या है वो ये कहता है कि हमारे, क्योंकि इन इंडिया वी हैव वेरी डाइवर्स कल्चर, अलग अलग रिलीजन्स एंड लैंग्वेज के बेसिस में देयर इज सो मेनी डाइवर्स पीपल वी कैन से। रीजनल के हिसाब से भी देयर आर सर्टेन डाइवर्सिटी, सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं। अब अगर हमें सबको देखा जाए, सबके बीच में आपस में कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन कुछ नहीं है, जस्ट अ सिंगल कनेक्शन कि हम एक ही नेशन शेयर करते हैं। और वो जो नेशन शेयर करने वाला फीलिंग है दैट इज ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कि हम एक ही कंट्री से हैं, एक ही टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, एक नेशन दैट इज इंडिया के हैं। और वो वर्ड जो इस चीज को डिनोट करता है स्पेसिफिकली दैट इज फ्रेटर्निटी। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। जैसे बहुत सारी पहले प्रैक्टिसेस होती थी कि इफ अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ भी उसके साथ उसकी जो फायर है उसमें बैठ जाएगी। सो दिस मीन्स सती प्रथा जो थी, सो इट वाज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो हमने इस प्रथा को खत्म किया। सो ऐसे धीरे धीरे करके जो पुरानी कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो स्पेसिफिकली वुमेन को लेके थी, अगर इट वाज डेरोगेटरी टू वुमेन तो हमने एक एक करके उसको एबॉलिश किया। अभी भी ड्यूटी अभी भी यही कहती है कि इफ देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो आज भी डेरोगेटरी टू वुमेन है, जो वुमेन की डिग्निटी को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करती हैं, सो वी शुड ट्राई टू renounce those practices। renounce मतलब कि completely उसको abolish करना।
नेक्स्ट इज वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा जो कल्चर है, जो रिच कल्चर हो गया है, और उसमें वी ऑल्सो इंक्लूड जो आर्किटेक्चर था पुराना, या फिर जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन है। इन सब को कैसे प्रिजर्व करना है, इनको कैसे वैल्यू करना है, इट्स आवर ड्यूटी। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन जो है वो कैसे होगा? बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स ऑल्सो। यानी जो हमारे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उनका प्रोटेक्शन और उनका इम्प्रूवमेंट हमारे हाथ में है। प्लस जो लिविंग क्रीचर्स है, जैसे कि जो भी एनिमल्स या जो दूसरे बर्ड्स और जो कुछ भी लिविंग क्रिएचर्स हमारे ह्यूमंस के अलावा इस कंट्री, इस टेरिटरी में जो प्रेजेंट हैं, उनका ध्यान रखना हमारा ही काम है। हमें ऐसा नहीं करने लगना है कि हम जाके शिकार करना चालू कर दें। सो वो अब यहाँ पे क्या है, दैट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। बट अगर अब इसी प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट या इम्प्रूव इन्वायरमेंट से जो हमारे इन्वायरमेंट लॉज बन के आए हैं स्पेसिफिकली, जैसे एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, अगर इन एक्ट्स में इफ वी आर डिस्टर्बिंग एनी ऑफ द थिंग जो कि हमें मना किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है करने से, अगर वहां पे हम वो एक्ट करते हैं तो दैट वुड बी एन ऑफेंस, और दैट वुड बी टेकन एज कि आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को ब्रेक किया है। तो अब फर्दर उसके जो रेपरकशंस हैं, उसके आने वाले जो हिंड्रेंसेस जो आपको फेस करने पड़ेंगे, दैट विल अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट जिसका वो प्रोविजन है जो आपने ब्रेक किया है। नेक्स्ट इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सो दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग द डेवलपमेंट जो कि इंडिया में होना चाहिए, और उसको डेवलपमेंट के लिए ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को लेके दिस हैज बीन ड्यूटी गिवन टू अस। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करना, वायलेंस ना करना। अब देखो वायलेंस होता है तो ऑफ कोर्स जो पब्लिक प्रॉपर्टी है डैमेज होती है, डैमेज की जाती है, और इस तरह की चीजें ना हो। दिस हैज बीन गिवन अस द ड्यूटी। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हमेशा कोशिश ये करनी है कि जितने भी स्फीयर्स हो सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, हमें कोशिश करना है टू बी एक्सेल्ड इन ईच ऑफ दैट फील्ड। और ये कलेक्टिव एक्टिविटी हो, मतलब वी आर promoting the kind of सोसाइटल जो कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट जो है सोसाइटल, उसको हमें प्रमोट करना है। लास्ट कम्स इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन। और ये जो चिल्ड्रन है इनका एज डिफाइन कर दिया गया है, दैट इज फ्रॉम एज 6 and 14 years. This was added in 86th amendment, and 86th amendment came in 2002. So these are the basically 11 fundamental duties which I discussed with you, and these 11 duties are very important, applies to citizens only. ये नॉन सिटीजन्स पे अप्लाइड नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे जो हमारे मेजर राइट्स हैं हम सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं, और सिटीजन से ही हम प्रिज्यूम भी कर सकते हैं कि सिटीजन से हमें इस तरह के मॉरल ऑब्लिगेशंस का जो कह सकते हैं पूरा होना है, या कह सकते हैं कि उसका जो कंप्लीशन है वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सिटीजन्स ओनली। तो ये हमने सिटीजन्स को दे रखा है। नॉन जस्टिसिएबल because we cannot directly these particular provisions cannot directly enforceable in the court, so this is a kind of non-justiciable thing. Serve as a constant reminder to citizens that rights are always paired with the duties. जहाँ rights है वहाँ duties में होंगी। जैसे ये phrase सुना होगा पहले, that where there are rights there are duties present also. So जहाँ पे rights है वहाँ duties है, तो constant reminder है हमारे पास कि part 3 है तो part 4 का होना जरूरी है। सो नाउ नेक्स्ट इज कि वाई फंडामेंटल ड्यूटीज मैटर सो मच। इसलिए क्यों मैटर करता है, रीजन क्या है? दे सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू एवरी सिटीजन, बिकॉज वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स देम राइट्स, इट आल्सो एक्सपेक्ट्स देम टू ऑब्जर्व सर्टेन बेसिक नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट एंड बिहेवियर। और किस तरह के कंडक्ट की बात करता है? जैसे कि आपको देखो सिटीजनशिप की वैल्यूज और अगर डिसिप्लिन को प्रमोट करना है इन दिस डेमोक्रेटिक लाइफ, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इन ड्यूटीज को फॉलो करें। सो पहला हो जाता है हमारा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हम लोगों को ये बोल रहे हैं देयर इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी, कुछ एक आपकी ड्यूटी बनती है आपके नेशन के अगेंस्ट, और वो ड्यूटीज जो है वो हमें एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है टू गो टूवर्ड्स
do something towards the nation. Next is sustainable development, a very important word in nowadays. sustainable development हर जगह है, हर फील्ड में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है कि सोशल हार्मनी अगर हमें बना के रखनी है तो वी हैव टू एनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और वो जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो अदर इंडिविजुअल्स के लिए भी है, एज अ होल सोसाइटी के लिए भी है, टुवर्ड्स द एनवायरमेंट भी है, एंड टुवर्ड्स द नेशन भी है। तो उस चीज को वी हैड टू, एज अ इंडिविजुअल वी हैड टू always strengthen this particular thing. Next is complement rights. Up rights are present, so therefore to prevent anarchic individualism it is important कि एक responsible exercise हो of these duties, और वो एक as a each person, as an each individual, as a citizen of India has that particular duty. Next is inspire legislation for social justice and national integrity, acting as guiding principles for policy makers. जैसे DPSP acts as the directions to the states to follow up and make new laws as per its competency. So यहाँ पे जो हमारी duties हैं उनका भी यही काम है कि they also act as guiding principles for the policy makers, for the legislature, जिससे कि आगे further जो welfare policy बनाए वो state इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए। And these are the fundamental duties, these are binding on the citizens morally only. That is why we say that it is non-justiciable. अगर एक सिंगल वर्ड बताऊं आपको दैट इनको वर्ड कनेक्ट क्या करता है, सो वर्ड इज ट्रिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। And trinity of the constitution means the triangle formed between these three words, that is rights, duties and DPSPs. So last, concluding from here, balancing rights and duties for constitutional harmony, it means that कि fundamental rights का और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका आपस में कनेक्शन क्या है, वी हैड ऑलरेडी सीन, एंड दीज आर द थ्री पिलर्स दैट फॉर्म द बेडरॉक ऑफ इंडियाज वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड इंश्योर क्या करता है दैट they bear obligation towards the nation, society and environment. अगर हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए which is responsible, which is disciplined, which is united, तो उसके गवर्नेंस के लिए, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो सिटीजनशिप है उसका भी कोई फ्रेमवर्क हो. देयर आर सर्टेन ड्यूटीज ऑन द सिटीजन्स ऑल्सो. सो इफ आई नेम इट कि एट लास्ट जस्ट द कंक्लूडिंग वर्ड, तो fundamental duties are the moral backbone of citizenship. Very important phrase said for this particular part, that is moral backbone. It is very important क्योंकि ये हर एक सिटीजन को याद दिलाता है कि अगर कुछ राइट्स एंजॉय कर रहे हो, सो देर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो कि आपको फॉलो करने हैं, और वो जो सर्टेन ऑब्लिगेशन है वो आप ही के नेशन, आप ही की सोसाइटी, आपके ही लोगों के लिए है, आपके ही इन्वायरमेंट के लिए जिसमें आप रह रहे हैं. सो कॉल टू एक्शन, आई कैन से दैट एम्ब्रेस योर फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ प्राउड इंडियन सिटीजन एंड सी as an aspirant जब आप पढ़ते हैं you know this कि what is rights, what is directive principles, what is duties. So I also expect you, apart from this syllabus, as a citizen I expect you that now if you know about these fundamental duties you should embrace this duty as being a proud Indian citizen, and you should follow all of these pointers in your life as well. और जितने भी आपके जो मिलने वाले लोग हैं, जो जान के लोग हैं, जो आपके अगल बगल हैं, नेबर्स हैं, you owe certain duty towards them. So from now onwards, after explaining this to you, I expect you as a citizens to actually apply this in reality. So concluding from here, I hope you have understood what is the concept of fundamental duties and how it is connected to the fundamental rights and DPSPs, and how it is actually applied in the society, and what are the reasons for the upliftment of these fundamental duties and follow up of these duties. So I hope you have understood this topic. If not, you can always ask me whatever your questions are in the comment box. So please like, share and subscribe and follow for more lectures on this. So thank you so much for this watching this video. I hope
it is all clear to you, and see you in the next video. Thank you.